Hello dear students, this is Rajesh Viz. Welcome to all of you in my YouTube channel. Today I am here to topic. This is chapter 6 linear inequalities, which we have discussed in the previous part, that is in part 1. In part 2 we are going to discuss about how we can draw the graph of the given different inequalities and how we can find the required solution or required reason of the given inequality. Before starting the video, if you have not subscribed my channel, firstly subscribe my channel and don't forget to press the like button and as well as share with your friends. Now here we are going to find out the graphical solution of a linear inequality in two variables. Two variables. We very well know ax plus by plus c equals to 0. What is this? This is a linear equation in two variables. तो हमारे पास आज हम इसी टाइप की लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे. दिस इज ax plus by plus c equals to 0. It means the linear inequalities, that is linear inequalities in two variables. So first of all we have some points, that is a line divides the Cartesian plane into part. Cartesian plane we know कि हमारे पास एक ग्राफ शीट होती है, तो वो ग्राफ जो हमारे पास है वो हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं. तो उस कार्टेशियन प्लेन को कोई भी एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसे क्या करती है, टू पार्ट्स में ब्रेक कर देती है. ईच पार्ट इज नोन एज द हाफ प्लेन and a vertical line will divide the plane in left and right half planes, and a non-vertical line will divide the plane into lower and the upper half planes. Like you can see the two figures. You can see in the first figure, that is this is a vertical line और ये vertical line है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, that is left hand plane and this is the right hand plane. और ये हमारे पास नॉन वर्टिकल लाइन है. अब ये नॉन वर्टिकल लाइन है तो एक अपर हाफ हो गया एंड एक लोअर हाफ हो गया. तो इस तरह से हम इन प्लेन को डिफाइन कर सकते हैं. और ये लाइन किसी भी एक कार्टेशियन प्लेन को टू पार्ट्स में ब्रेक करती है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. नाउ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन विल ईदर लाई ऑन वन लाइन और विल लाई ईदर ऑफ द हाफ प्लेन्स. मतलब वो लाइन के ऊपर लाई कर सकता है, वो किसी भी हाफ प्लेन, लेफ्ट हैंड प्लेन, राइट हैंड प्लेन, अपर प्लेन, लोअर प्लेन, कहीं भी लाई कर सकता है. Before find out the solution of a given inequalities, that is solution figure we have to find out here. So before this we should know about these points, that is the region containing all the solution of an inequality is called the solution region. मतलब जहाँ पर सारे inequality के region satisfy होंगे वो region हमारा solution region होगा. Second one, in order to identify the half plane represented by inequality, मतलब जो इनइक्वालिटी है कौन से हाफ प्लेन को डिटरमाइन कर रही है, तो इसको हम जस्टिफाई करने के लिए कोई भी पॉइंट ए बी ले लेते हैं जो उस लाइन पर लाई नहीं कर रहा. इसका मतलब हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वो ए बी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 03 हो सकता है. तो प्रिफरली वी आर टेकिंग 00, लेकिन वी आर टेकिंग 00 ओनली फॉर दोज लाइन्स विच आर नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन. मतलब जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो उनकी रीजन को हम 00 मतलब ओरिजिन से चेक कर सकते हैं. दैट इज द रीजन ऑफ दैट लाइन विल टूवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन. थर्ड पॉइंट, if an inequality is of the type ax plus by is greater than equal to c or ax plus by is less than equal to c. अगर इस तरह कोई इनइक्वालिटी है तो हम ये कह सकते हैं then the points on the line ax plus by plus is equals to c are also included in the solution region. मतलब ax plus by equals to c पर जो पॉइंट होंगे वो उस लाइन पर भी लाई करेंगे. मतलब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो वो पॉइंट उस लाइन ax plus by इक्वल्स टू c पर भी इंक्लूड होंगे. इसका मतलब उसके जो पॉइंट्स होंगे उस सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होंगे. अगर इंक्लूडेड होंगे तो वहाँ पर हम एक डार्क लाइन को बनाएंगे. अगर वही ax plus by इज ग्रेटर देन इक्वल टू c आ जाता है इनइक्वालिटी में, या ax plus by इज लेस देन इक्वल टू c आता है इनइक्वालिटी में, तब उस करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ax plus by इक्वल्स टू c के जो पॉइंट होंगे उस सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं होंगे. इसका मतलब इस केस में हम डॉटेड लाइन प्रेफर करते हैं बनाना, ना कि स्ट्रेट लाइन.
So these all points are very important and these will help us to understand how we can draw the figure. So let's move with the some examples. This example first, that is solve 3x plus 2y is greater than equal to 6 graphically. इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन, दिस इज 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6 हमें दिया हुआ है। अगर ग्रेटर देन 6 हुआ है तभी हमने पढ़ा कि ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे वो इस लाइन पे इंक्लूड नहीं होंगे। अगर इंक्लूड नहीं होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर डॉटेड लाइन प्लॉट करेंगे। तो सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सम corresponding इक्वेशन। तो राइट द corresponding इक्वेशन, दिस इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, corresponding इक्वेशन लिख ली। अब इस इक्वेशन पे ये इनइक्वालिटी है लेकिन इसकी corresponding हमने इक्वेशन लिख लिया। अब इस इक्वेशन के हमें क्या निकालने हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ पुट कर देंगे। जैसे हमने x की वैल्यू पुट कर दी 0, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि 2y इक्वल्स टू 6 आ गया और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हमने x और y की वैल्यू निकाली, x 0 y की वैल्यू 3, y 0 x की वैल्यू 2 में निकाली। तो वी गॉट सम पॉइंट्स। हमारे पास पहला पॉइंट आ गया 0 3 एंड दूसरा पॉइंट आ गया 2 0। तो हमने वो दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। यू कैन सी द ग्राफ। ये हमारे पास 0 3 है, 0 3 मतलब इट लाइज ऑन द y एक्सिस। तो ये हम अगर हम 0 एज्यूम करें, दिस इज 0 1 2 3, दिस पॉइंट इज 3, ये 3 हमने यहाँ पर 0 3 ये हमारा पॉइंट आ गया। सिमिलरली 2 0 मतलब x एक्सिस पे हम 2 यूनिट्स आगे जाएंगे, जैसे 1 2। ये हमारे दोनों पॉइंट हमने डिनोट कर लिए। डिनोट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डॉटेड लाइन प्लॉट करेंगे। वाई डॉटेड लाइन? बिकॉज हमने बताया यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन और लेस देन के दोनों के केस में डॉटेड लाइन बनती है। ग्रेटर देन और इक्वल टू है या लेस देन और इक्वल टू है तो उस केस में सारे पॉइंट उस लाइन पर भी इंक्लूड होंगे, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन पे इंक्लूड नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर हम डॉटेड लाइन प्लॉट कर देंगे। तो हमने डॉटेड लाइन प्लॉट कर दी जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। नाउ अब हमें देख सकते हैं कि इस लाइन, ये जो लाइन है इस कार्टेशियन प्लेन को दो हाफ में डिवाइड कर दिया, एक लोअर हाफ एक अपर हाफ। मतलब एक रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन है, एक रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, वो टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला रीजन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रिफरली वी आर टेकिंग पॉइंट 0 0, मतलब ओरिजिन को ही हम एज अ बेस लेके चलते हैं, क्योंकि ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास नहीं हो रही। तो हम कौन सा पॉइंट प्रिफरली लेके चलेंगे, तो हम पॉइंट 0 0 ओरिजिन लेके चलते हैं। तो टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन वी चूज 0 0 पॉइंट। 0 0 पॉइंट हमने चूज कर लिया। 0 0 कहाँ चूज करके रखेंगे, इस इनइक्वालिटी को हम चेक करेंगे। ये 0 0 पॉइंट हम कहाँ चेक करेंगे, इस इनइक्वालिटी में चेक करेंगे। दिस इज 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x के प्लेस में 0, y के प्लेस में 0 पुट कर दिए, तो दिस इज x 0 y 0 पुट किया। ऑन सॉल्विंग पूरी वैल्यू 0 आ गई एंड दिस इज ग्रेटर देन 6। इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6, सो दिस इज अ फॉल्स। फॉल्स का मतलब हमने एक पॉइंट 0 0 पे चेक किया और वो रीजन क्या आ गया, फॉल्स आ गया। मतलब इसका रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन होकर अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। सो द रिक्वायर्ड रीजन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और हम क्या करेंगे, वी विल शेड दिस रीजन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाले रीजन को हम शेड कर देंगे। तो ये शेडेड पोर्शन हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, तो वी कैन राइट शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो you have seen this is a very simple example. Just we are taking the inequality and making the corresponding equation, and then with the help of this equation we are making 2 or more points, and then with the help of these points we can draw a dotted line. तो यहाँ पर हम dotted line plot कर ली हमने, and then after we will see whether जो हमारा रीजन है वो towards the origin है या हमारा जो रीजन है अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। उसके लिए हम किस पॉइंट को चूज किए, 0 0 से, क्योंकि हम पहले चेक कर ले ये लाइन हमारी 0 0 से पास नहीं हो रही। तो अगर 0 0 से पास नहीं हो रही तो 0 0 पर हम इसको चेक कर सकते हैं। जो भी लाइन 0 0 मतलब ओरिजिन से पास हो रही है उसको ओरिजिन पर चेक ना करके हम किसी दूसरे पॉइंट पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये लाइन 0 0 से पास नहीं हो रही, इसलिए हमने इसे ओरिजिन पर चेक किया, 0 0 पर चेक किया, और जैसे ही हमने x की जगह 0 y की जगह 0 वैल्यू पुट की तब हमारे पास ये फॉल्स सॉल्यूशन आ गया। अगर फॉल्स आ गया इसका मतलब जो इसका रिक्वायर्ड रीजन है इट इज नॉट टुवर्ड्स द ओरिजिन, इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, दैट्स इज द रिक्वायर्ड रीजन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। अगेन वी आर गोइंग टू
सॉल्व इट ग्राफिकली, बट यहाँ पर अगर हम साइन देखें 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। अब यहाँ लेस देन भी है एंड इक्वल टू भी है। इक्वल टू भी मतलब हम यहाँ पर अब एक सिंपल लाइन बनाएंगे, डार्क लाइन बनाएंगे, बिकॉज जो हमारा सोल्यूशन रीजन है वो उस लाइन के ऊपर भी होगा, इसलिए। नाउ सी हियर अगेन वी विल राइट द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, एंड करस्पॉन्डिंग इक्वेशन करने के बाद हम x और y के कुछ वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद x के लिए 0 पुट कर दी, अगर x 0 पुट करते हैं y के लिए 3 आ जाती है, एंड y के लिए 0 पुट करते हैं x के लिए 4 आ जाएगी। अब ये दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर लोकेट करेंगे, और लोकेट करने के बाद हम वहाँ से एक लाइन प्लॉट करेंगे। लाइन हमने प्लॉट कर दी और उस इक्वेशन को हमने मेंशन कर दिया। नाउ अब हमारे फिर से सोल्यूशन क्या फाइंड आउट करना है कि ये लोअर हाफ है अपर हाफ है। उसको चेक करने के लिए अब हम देखेंगे ये लाइन कहाँ से पास हो रही, 0 0 से पास नहीं हो रही। इसका मतलब हम ओरिजिन मतलब 0 0 पर ही चेक करेंगे कि इसका सोल्यूशन रीजन क्या हो सकता है। 0 0 x की जगह 0 हम वैल्यू पुट की, y के प्लेस में वैल्यू 0 पुट की, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। ट्रू है फॉल्स है? यस इट इज डेफिनेटली, बिकॉज 0 इज लेस देन 12। सो ये ट्रू आ गया। ट्रू आ गया इसका मतलब इसका रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ हो गया, बिकॉज ट्रू है। 0 0 ओरिजिन पर हमने चेक किया और ओरिजिन पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। ट्रू इसका मतलब द सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन एंड वी देन शेड दिस रीजन। हमने इस रीजन को शेड कर दिया। दिस इज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सीधा नाउ स्टूडेंट सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। Solve the following system of linear equations and graphically we have to solve this. You can see two inequalities are given, x plus y is greater than equal to 5 and x minus y is less than equal to 3. तो दो इनक्वालिटी हमारे पास हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखना है, हमने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लेनी है। दोनों करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना ली, दिस इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y के लिए 5 आती है, y के लिए 0 पुट करते हैं, x के लिए 5 आ जाती है। सिमिलरली हियर यहाँ पर भी हम दो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, एंड देन वी गॉट 0 5 5 0 इज द पॉइंट फॉर द फर्स्ट, एंड 3 0 एंड 4 1 इज द आर द पॉइंट्स फॉर द सेकंड। अब ये दो पॉइंट्स हमने फर्स्ट लाइन के लिए निकाल लिए एंड ये दो पॉइंट हमने सेकंड लाइन के लिए निकाल लिए। नाउ वी विल ड्रॉ lines which are passing through the point 0 5 5 0 and 3 0 4 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट वन। फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी हमने जो 0 5 और 5 0 से पास हो रही थी। दिस इज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 5 0 एंड 0 5। एंड सिमिलरली हमने यहाँ पर दूसरी लाइन के लिए भी दो पॉइंट फाइंड आउट किए। अब इन पॉइंट्स हो गए लाइन के को भी हमने प्लॉट कर लिया। दिस इज 0 3 एंड 4 1। अब हम सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट लाइन है हमारी उसका जो हमारा रीजन है वो किधर की तरफ लाई करेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। एंड सिमिलरली हमें सेकंड वाली लाइन के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए हम 0 0 पॉइंट को ही चूज करते हैं, बिकॉज ये दोनों लाइन कहाँ से ओरिजिन से पास नहीं हो रही। इसका मतलब हम ओरिजिन पे चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन के जब हम चेक करते हैं तो x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, टोटल 0 आ गया। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड इज इट ट्रू? नो, दिस इज फॉल्स, बिकॉज 0 नेवर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अगर फॉल्स है इसका मतलब जो इस फर्स्ट लाइन का रीजन है दिस इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो हमने इस लाइन को शेड कर दिया, हमने इस रीजन को शेड कर दिया विच इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारे पास जो है x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। अब हम इसमें पुट करेंगे फॉर सेकंड वन 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। डेफिनेटली दिस इज ट्रू बिकॉज 0 इज लेस देन 3। इट इज ट्रू। देन इस रीजन जो होगा, इसका रीजन जो होगा वो कहाँ होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। मतलब हमारा टूवर्ड्स द ओरिजिन ये वाला रीजन आ गया। अब ये टूवर्ड्स द ओरिजिन रीजन आ गया, इसका रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन था। अब देख रहे हैं कि दोनों रीजन हमारे पास कहाँ बनाए, ये रीजन हमारा जो है वो दोनों, इसके लिए भी और इस लाइन के लिए भी, ये दोनों रीजन जो हमारा ये वाला रीजन दोनों ही पार्ट में कॉमन आ रहा है। दोनों के अपर हाफ में हमारा ये रीजन कॉमन है। अगर ये रीजन हमारा कॉमन है इसका मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, क्योंकि ये हमारा डार्कन रीजन है, ये दोनों ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है सो वी कैन से डबल शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड।
Now students, see the next example. Solve the inequalities graphically. तो 4 inequalities you can see here. अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट inequality x plus 2y is less than equal to 8, 2x plus y is less than equal to 8, and x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. These third and fourth inequality. इनका मतलब हुआ x greater than 0, y greater than 0 कब होते हैं? x is positive, y is positive. It means the required solution lies in the first quadrant. मतलब x और y हमें यही डिनोट कर रहा है, x is greater than 0, y is greater than 0 में क्या डिनोट कर रहे हैं कि जो हमारा सोल्यूशन रीजन होगा वो किस में होगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी नहीं लाई करेगा। तो हमें जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट, हमने फिर से स्टार्ट वहीं से करना है। वी विल राइट द सम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमने दो के लिए लिखनी है और एक्स वाई के लिए हम यहाँ पर नोट डाल दिया मैंने कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच डिनोट्स दैट द रिक्वायर्ड रीजन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमने सोल्यूशन रीजन लिख दिया। नाउ वी विल पुट द सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई वी कैन गेट फॉर द बोथ द लाइन्स। तो हमने यहाँ पर एक्स के लिए 0 पुट की, वाई के लिए 4 आ गई, वाई के लिए 0 पुट की, एक्स के लिए 8 आ गई। तो फॉर फर्स्ट लाइन एंड फॉर सेकंड लाइन के लिए हम देखेंगे कि एक्स के लिए हम 0 पुट कर रहे हैं, वाई के लिए 8 आ रही है, वैसे ही वाई के लिए 0 पुट कर दिया, एक्स के लिए 4 आ गई। तो अब हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए 0 4 8 0 से एक लाइन पास होगी और जो सेकंड लाइन है वो 0 8 4 0 से पास होगी। तो वी हैव रिटन एंड वी विल ड्रॉ दीज टू लाइन्स। फर्स्टली हमने प्लॉट की लाइन 0 4 और 8 0 से होकर जाने वाली और सेकेंडली हम प्लॉट करेंगे 8 0 और 4 0 से होकर जाने वाली लाइन को प्लॉट कर दिया। अब ये दोनों लाइनें हमारी प्लॉट हो चुकी हैं हमने। अब इसका सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें 0 0 से पास नहीं हो रही, तो 0 0 हम रख के क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो इनका रीजन होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो टू फाइंड आउट द सोल्यूशन वी चूज 0 0। तो 0 0 पर हमने पहली वाली लाइन को पुट किया, x की जगह 0, y के प्लेस में 0, x और y के प्लेस में 0 पुट करते इसकी वैल्यू हमारी 0 आ गई। डेफिनेटली 0 हमारा लेस देन इक्वल टू 8 है। दिस इज ट्रू ट्रू, इसका मतलब इसका जो रीजन होगा फर्स्ट लाइन का, दिस इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये हमारा शेडेड रीजन हो गया, दिस इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। हम नीचे क्यों नहीं शेड कर रहे? बिकॉज हमारा जो सोल्यूशन रीजन है वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाना है, बिकॉज x और y बोथ आर ग्रेटर देन 0, मतलब नीचे हमें नहीं जाने की जरूरत है। नाउ अब सेकंड इनइक्वालिटी में हम चेक करेंगे, x की वैल्यू 0, y के लिए 0 पुट की, फिर 0 प्लस 0 0 आ गया एंड दिस इज लेस देन 8। ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा दिस इज आल्सो लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसका रीजन ये हुआ। नाउ यू कैन सी कि ये लाइन, ये वाला फर्स्ट लाइन का जो अंडर रीजन था, सेकंड लाइन के अंडर जो रीजन था, उसके बीच में हमारे पास ये जो कॉमन रीजन आया, दिस इज द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन जो है हमारा, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस डार्कन रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसको हम अच्छी तरह से डार्क कर देंगे सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड वी कैन राइट दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट एग्जांपल। Solve the following system of inequalities graphically. So you have seen this is x plus 2y is less than or equal to 10, x plus y is greater than or equal to 1, and x minus y is less than or equal to 0, and x y both are greater than or equal to 0. तो इसका मतलब तो हमें पता ही है कि this denotes that जो solution region it lies in the first quadrant only. तो अब हम पहले फिर से corresponding equation लिख लेंगे तीनों की। अब इसके corresponding हम points को भी find out कर लेंगे और पॉइंट्स को हमने जनरेट कर लेना है। x के लिए हम 0 पुट करेंगे, y के लिए 5 आ गई, y के लिए 0 पुट करेंगे, x के लिए भी हमारी 10 आ गई। तो सिमिलरली फॉर सेकंड के लिए भी हमने x के लिए 0 पुट की, y के लिए 1 आ गई, y के लिए 0 पुट की, x के लिए 1 आ गई। यहाँ पर हमने x के लिए 0 पुट की, y भी 0 आ गया। अब 0 0 पुट तो दोनों ही सेम 0 आ रहे हैं, तो इसलिए हमने कोई और पॉइंट 1 1 पे चेक कर सकते हैं, 2 2 पे कर सकते हैं, मैंने 5 5 पे कर लिया। तो अब हमारे पास ये तीन लाइनों के लिए पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम इन पॉइंट्स की हेल्प से 0 5 और 10 0 को पहले हम प्लॉट करेंगे। तो पहली लाइन हमने प्लॉट कर दी जो 0 5 और 10 0 से होके जा रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। अब इसी तरह से हम सेकंड लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। 1 0 0 1 को हमने प्लॉट किया, दिस इज 1 0 0 1 जो दोनों पॉइंट्स होके जा रही है। दिस लाइन इज सेकंड वन, दिस इज x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम थर्ड लाइन x माइनस वाई वाली लाइन को हम प्लॉट करेंगे जो इन दोनों पॉइंट्स जा रही है 0 0 5 5 से जा रही है। तो दिस इज आवर थर्ड लाइन और x एंड x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या डिनोट कर रहा है? दिस डिनोट्स द रिक्वायर्ड रीजन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ना अब हम वन बाई वन वी हैव टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रीजन। अब हमें रीजन फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट लाइन का जो शेडेड रीजन वो कौन सा होगा, सेकंड लाइन का कौन सा होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होंगे। तो इसके लिए हम फिर से जो हमारी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन हमारी 0 0 से पास नहीं हो रही। अगर 0 0 से पास नहीं हो रही, हमको 0 0 पर चेक करेंगे। तो x के प्लेस में 0, y के प्लेस में 0 पुट किया, टोटल आंसर 0 आ गया। दिस इज लेस देन 10 आ गया। दिस इज ट्रू। ट्रू इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट लाइन है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, इसका रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो हमने इस रीजन को शेड कर दिया। इसी तरह से दूसरी लाइन को हम चेक करें। दूसरी लाइन भी हमारी ओरिजिन से पास नहीं हो रही। दिस इज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओरिजिन से पास नहीं हो रही। इसको भी हम 0 0 पर चेक करेंगे। अब 0 0 पर जैसे इसको चेक किया, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये रीजन हमारा फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स है सो इसका जो रीजन है दिस इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसका रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। हमने इस पार्ट को शेड कर दिया, ऊपर वाले इस लाइन के ऊपर वाले रीजन में हमने शेड कर दिया। नाउ थर्ड इनइक्वालिटी अगर हम चेक करें तो ये थर्ड इक्वालिटी हमारी 0 0 से पास हो रही है। यू कैन सी ये हमारी थर्ड इनइक्वालिटी जो है, थर्ड लाइन जो है 0 0 ओरिजिन से पास हो रही है। अगर 0 0 ओरिजिन से पास हो रही है इसका मतलब इसे हम 0 0 पर चेक ना करके किसी और पॉइंट पर चेक करेंगे। तो मैं एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ। दिस इज 1 0। 1 0 पर अब हम चेक करते हैं। तो 1 0 पर मैंने चेक किया, 1 माइनस 0 आ गया बिकॉज एक्स के प्लेस में 1, वाई के प्लेस में 0, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज लेस देन 0। डेफिनेटली दिस इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है इसका मतलब इस लाइन के अंडर जो रीजन है वो 1, 0 के टूवर्ड्स लाई, मतलब एक्स एक्सिस के तरफ लाई नहीं करेगा, ये रीजन किधर की तरफ लाई करेगा, अवे फ्रॉम द एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस की साइड लाई करेगा। और वाई एक्सिस की साइड लाई करेगा इसका मतलब ये रीजन होगा इसका। अगर ये रीजन, तो हम क्या देख रहे हैं कि इन तीनों शेडेड रीजन से घिरा हुआ रीजन कौन सा है, ये हमारा वो रीजन है जो तीनों से बाउंडेड है। तीनों शेडेड रीजन से बाउंडेड हमारा जो मेन रीजन है, दिस इज द मेन रिक्वायर्ड रीजन। सो वी कैन एट लाइट so we can write at last that is darkened region is the required solution. You can label it, this is a b c d भी हम लेबल कर सकते हैं और उसका नाम दे सकते हैं। तो लास्ट में लिख सकते हैं हम this a b c d is the required reason. So dear students, I think you will like this video and you also will try this type of question with your NCERT book at your home, and definitely you will try to solve it and will ask your problem and discuss these problems with your teacher. Thank you. Have a nice day. God bless you.